Hello, how are you guys doing? I hope you guys are doing really good. तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका बीकॉम पार्ट वन सेम टू का जो प्रो सेक्शन का लास्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे विच इज prospects of democracy in India. What are the prospects of democracy in India? This chapter is given to us by B.R. Ambedkar जी. डॉक्टर B.R. Ambedkar जी के द्वारा ये चैप्टर हमें दिया गया है। तो हम ये देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया। पहले थोड़ा इंट्रो देखते हैं, फिर एक्चुअल जो चैप्टर है वन बाय वन लाइन बाय लाइन हम उसे देखते हैं। ठीक है। In Prospects of Democracy of India, Dr. Babasaheb Ambedkar throws a light on social situation in India. He asks how democracy firmly rooted in the caste system can flourish. He emphatically asserts that being a republic or having a parliamentary government does not necessarily mean that India is a democratic country. He claims that democracy is a mode of associated living. In a democratic country, all inhabitants should constitute a harmonious whole. The harmony is conspicuous by its absence in India. The division between those of upper caste and those of lower leads inevitably to mutual hatred and contempt. In every sphere of life, industry, politics, commerce, is evident the indelible influence of caste distinction. There are man-made barriers resulting in formation of two watertight compartments, one for master and other for slaves. There can be no plausible democracy until the abolition of this divisive caste system. In this opinion, Dr. Babasaheb Ambedkar, education, in this opinion, in the opinion of Dr. Babasaheb Ambedkar, education can, to some extent, resolve this problem. Those from the lower caste can effectively resist the caste system if they can receive education. However, he has doubts about the after effects of education, which those from higher class receive. After getting education, they become more interested in retaining the caste system, which assures them of more opportunities and better jobs. This eventually possesses a serious threat to the success of democracy. Though expressed in 1956, this view of Dr. Ambedkar are valid and relevant even today. Herein lies the greatness of Dr. Babasaheb Ambedkar as a sagacious thinker. मतलब उनकी सोच इतनी आज के ज़माने में इतनी वैलिड है, इतने उन्होंने 1956 में जो सोचा था कि इंडिया में अगर बहुत सारा कास्ट सिस्टम है, पार्लियामेंट बना देने से यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं आ जाएगी। डेमोक्रेसी यहाँ पे तब तक नहीं आ सकती जब तक लोग आपसी एकता के साथ आपसी अपर कास्ट लोअर कास्ट का भेदभाव छोड़ने के बाद ही यहाँ पे ऐसा कुछ डेमोक्रेसी रियल सेंस में एग्जिस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे एक वो तरीका बताते हैं कि एजुकेशन ऑफ लोअर कास्ट के वजह से ये थोड़ा सिस्टम में जो भेदभाव है ऊंच नीच है, डेमोक्रेसी जो एग्जिस्ट नहीं करती है, इवन इफ हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं फिर भी डेमोक्रेसी ठीक से यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। ये हम मिटा सकते हैं बाय एजुकेटिंग लोअर कास्ट। बट लोअर कास्ट को पढ़ाने से वो बोलते हैं कि वो उनकी सोच तो बदल जाएंगी, वो ऊपर आने की सोचेंगे। बट जो हायर कास्ट है उनको एजुकेट करेंगे तो वो ये हमेशा सोचेंगे, वो और हायर कास्ट सोचेंगी कि ये डिफरेंस सही है, इनको ऐसे नीचे ही दबा के रखो, इनको दबा के रखेंगे लोअर कास्ट को तो हमें ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिलेंगी। तो ये डिफरेंस कभी खत्म नहीं हो सकता है अगर हम एक्चुअली इस चीज पे वर्कआउट नहीं करना चाहते तब तक। तो यहाँ पे वो 1956 की ये जो उनकी स्पीच है वो आज भी उतनी ही वैलिड है, आज भी उतनी ही स्ट्रांगली स्टैंड करती है जो जो तब उतनी उन्होंने बोला था। ठीक है। ये ओवरऑल एक व्यू है जो इस चैप्टर में उन्होंने बताया है। तो हम देखते हैं चैप्टर में डिटेल में उन्होंने क्या बोला है। द ये स्पीच है, द सब्जेक्ट ये स्पीच देने गए वहां का, द सब्जेक्ट असाइन टू मी इज व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। Most Indians speak with great pride as though their country was already a democracy. The foreigners also, when they sit at the dinner table to do diplomatic honor to India, speak of great Indian Prime Minister and the great Indian democracy. लोग हमेशा बस इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। यहाँ पे फॉरेनर्स भी ये बातें डिस्कस करते हैं, हम भी डिस्कस करते हैं। फ्रॉम दिस इट इज हेल्ड विदाउट वेटिंग टू आर्ग्यू दैट वेयर देयर इज रिपब्लिक देयर मस्ट बी अ डेमोक्रेसी।
जहाँ पे रिपब्लिक है वहाँ पे डेमोक्रेसी होना चाहिए, ऐसा लोग मान लेते हैं। इट इज सपोज दैट वेयर देयर इज अ पार्लियामेंट, ऐसा सपोज किया जाता है जहाँ पे पार्लियामेंट है, जहाँ पे लोगों के द्वारा पीपल ने इलेक्ट किए हुए, वहाँ पे एडल्ट एडल्ट लोगों के द्वारा चुने हुए लोग है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट में। और जहाँ पे कुछ हर सालों में, हर 5 सालों में इलेक्शन होते हैं, उस चीज को हम डेमोक्रेसी बोल देते हैं। तो इन अदर वर्ड डेमोक्रेसी को ऐसा समझा जाता है कि अंडरस्टूड टू बी पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट एज वेयर दिस पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट देयर इज डेमोक्रेसी। मतलब जहाँ पे ये पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट करता है वहां पे मान लिया जाता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, इवन दो वहाँ पे डेमोक्रेसी ट्रू सेंस में वर्क नहीं कर रही होती, इवन दो वहाँ पे ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है। बट वहाँ जहाँ पे ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा है कि वहाँ पे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव लोगों द्वारा, एडेड लोगों द्वारा, लोगों चुने गए लोगों को वहाँ पे गवर्न करने का अथॉरिटी दी जाती है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बन के। वो ऐसी कंट्री, ऐसी प्लेस को डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक प्लेस घोषित किया जा कर दिया जाता है। बट ट्रू सेंस क्या ये डेमोक्रेसी है? तो इज देयर डेमोक्रेसी इन इंडिया और देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया? तो क्या इंडिया में डेमोक्रेसी है या इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है? सच्चाई क्या है? नो पॉजिटिव आंसर कैन बी गिवन अनलेस द कंफ्यूजन caused by equating democracy with republic and by equating democracy with parliamentary government is removed। ये कंफ्यूजन तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक हम ये मानना ना छोड़ दें कि जहाँ पे रिपब्लिक है, जो कंट्री रिपब्लिक है, वहां पे डेमोक्रेसी होगी, या हम ये मानना ना छोड़ दें जहाँ पे पार्लियामेंट है वहां पे वो कंट्री में डेमोक्रेसी होगी। जब तक ये हम बातें मानना नहीं छोड़ देंगे तब तक हमें एक्चुअल सेंस में पता नहीं चलेगा कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। The roots of democracy lie not in the form of government, parliament और otherwise। जो roots of democracy, ये गवर्नमेंट कौन है, किसने चुनी है, या पार्लियामेंट है या नहीं, इन सारी चीजों से हमें पता नहीं लगा सकते कि डेमोक्रेसी है भी या नहीं। द डेमोक्रेसी इज मोर देन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होती, डेमोक्रेसी इज मोर देन अ गवर्नमेंट। इट इज primarily a mode of associated living। it is a mode of living, एक जीने का तरीका है वो। The roots of democracy are to be searched in the social relationship in terms of associated life between the people from a society। What does the word society connote? ये society word क्या क्या कन्वर्ट करता है, क्या रिजेंबल करता है, क्या बताता है? To put it briefly, when we speak of society, we conceive of it as one by its very nature. The qualities which accompany this unity as are praiseworthy. A society needs community of purpose and desire for welfare, loyalty to public ends, and mutuality of sympathy and cooperation। मतलब ये जो बेसिक से हमने डेफिनेशन बना रखी है सोसाइटी की, कि ये हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी को हम ऐसे कुछ डिफाइन कर देते हैं। आर दिस आइडियल्स टू बी फाउंड इन इंडियन सोसाइटी? क्या ये जो डेफिनेशन हमने बना रखी है सोसाइटी की, क्या ये चीजें एक्चुअली इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करती भी है क्या? वो ऐसा पूछ रहे हैं यहाँ पे। द इंडियन सोसाइटी डज नॉट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, इट कंसिस्ट ऑफ इनन्यूमरेबल। सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं, हमारी जो इंडियन सोसाइटी, इट ओनली डज नॉट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, बट यहाँ पे इनन्यूमरेबल कास्ट, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, वो सोसाइटी बनाते हैं, which are exclusive in their life and have no common experience to share and have no bond of sympathy। यानी अलग अलग कास्ट की वजह से यहाँ पे लोगों के बीच में सिंपैथी है भी या नहीं, है भी और नहीं भी है, ऐसा यहाँ पे है। Given this fact, it is not necessary to argue the point। The existence of caste system is blatant denial of the existence of those ideals of society and therefore of democracy। जहाँ पे कास्ट सिस्टम के ऊपर अभी भी भेदभाव हो रहा हो, वहाँ पे आप कैसे बोल सकते हो कि ये आइडियल सोसाइटी है? और जहाँ पे आइडियल सोसाइटी नहीं है, तो वहाँ पे कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे डेमोक्रेसी ठीक से एग्जिस्ट भी करती है या नहीं? तो इंडियन सोसाइटी इज सो एम्बेडेड इन कास्ट सिस्टम। तो इंडियन सोसाइटी में इतना सारा कास्ट सिस्टम आ चुका है इंडियन सोसाइटी के अंदर। Indian society is so embedded with the caste system that everything is organized on the basis of caste। सारी चीजें caste के according यहाँ पे organize की जाती है। Enter an Indian society, enter an Indian society and you can see the caste in its glaring form। किसी भी Indian society में चले जाओ और वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे caste basis पे चीजें हुई जाती है, caste basis पे चीजें decide की जाती है, caste basis पे decisions लिए जाते हैं। And Indian cannot eat or marry, जैसे आप examples देने शुरू करते हैं। An Indian cannot eat or marry with an Indian simply because he or she does not belong to his or her caste। हम same caste से belong नहीं करने वाले और लड़का लड़की से शादी नहीं करते। An Indian cannot touch an Indian because he or she does not belong to his or his caste। हम अनटचेबिलिटी भी हम सेम कास्ट, अलग कास्ट या जो भी है यहाँ पे करते हैं।
गो एंड एंटर पॉलिटिक्स एंड यू कैन सी कास्ट रिफ्लेक्टेड देयर। पॉलिटिक्स में अगर भी पॉलिटिक्स के अंदर भी अगर आप जाके चेक करो तो वहां पे भी आपको कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन दिखता मिलेगा कि सपोज कोई पॉलिटिशियन पर्टिकुलर कास्ट का है तो उस कास्ट की कम्युनिटी को ज्यादा फेवर करेगा, उस कास्ट के लिए उसको ज्यादा काम करेगा, उस कास्ट के लिए ज्यादा कुछ डेडिकेटेड रहेगा। However, thus an Indian vote in an election, he votes for a candidate who belongs to his own caste and no other। वैसे ही जैसे जब एक वोटिंग की बारी आती है हम वोट भी उन्हें ही देते हैं जो हमारे कास्ट का होता है। एक नॉर्मल इंडियन जो हम करते हैं नॉर्मली वो यहाँ पे बता रहे हैं। गोइंग टू द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में जाओ, व्हाट यू विल फाइंड दैट दैट ऑल द टॉप मोस्ट men drawing the highest salary belong to the caste of the particular industrialist who own the अगर इंडस्ट्री में जाओ तो इंडस्ट्री में जो हाई पेड सैलरी एम्प्लॉयड है एम्प्लॉयज है उनकी वो सारे के कास्ट सिस्टम चेक करोगे तो पता चलेगा इन सारे सेम कास्ट के हैं और ये इंडस्ट्री को जो लीड कर रहा है वो इन्हीं कास्ट का है जिनको ये हाई सैलरी दी जा रही है। तो सब जगह ऐसा भेदभाव हो रखा है। द रेस्ट हैंग फॉर द लाइफ ऑन द लोएस्ट रंग्स ऑन ऑफ द लैडर इन ऑन अ पिटांस। मतलब बाकी सारे ऐसे ही कम सैलरी में जबरदस्ती अपना जीवन वहां पे निकाल रहे हैं क्योंकि उनको निकालना ही पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं है। गोइंग टू द फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड यू विल सी द सेम पिक्चर। आप कॉमर्स की फील्ड में चले जाओ जनाब और वहां पे भी आपको ऐसा ही कुछ देखने मिलेगा। होल कमर्शियल हाउस is one camp of one caste with no entry board on the door for others। जहाँ पे एक ऐसा एक डोर है, डोर के ऊपर कोई नो एंट्री बोर्ड है, दूसरे कास्ट के सिस्टम अलाउड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमारे कास्ट वाले ही अलाउड है। ऐसा हमने सिस्टम यहाँ पे बना के रखा है। गोइंग टू द फील्ड ऑफ चैरिटी, चैरिटी में भी ऐसा एक दो को छोड़ के ऑल चैरिटी इज कम्युनल, सारी चैरिटी भी कम्युनल है। इफ अ पारसी डाइज he leaves his money for Parsis, if a Jain dies he leaves his money for Jains, if a Marwari dies he leaves his money for Marwaris, if a Brahmin dies he leaves his money for Brahmin। Thus, there is no room for downtrodden and outcasts in politics, in industry, in commerce, and in education। कहीं भी हम देखें तो कास्ट के बिना पे यहाँ पे काम ही नहीं चल रहा है, बात आगे ही नहीं बढ़ रही। सब लोग अपने कास्ट को ज्यादा सपोर्ट, अपने कास्ट को ज्यादा फेवर करते नजर आते हैं। There are other special features of the caste system which have their evil effects and which militate against democracy. One such special feature of caste system lies in its being accompanied by what is called graded inequality. Castes are not equal in their status; they are standing one above another. They are jealous of one। अब ये सपोज सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे कास्ट एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग कास्ट, वहाँ पे ग्रेडेड इनइक्वालिटी होता है। मतलब इसके साथ में इतना हम रखेंगे, इसके साथ में इतना रखेंगे। इन इक्वालिटी अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट है वो दूसरी पर्टिकुलर कास्ट के साथ में इतना इतना अच्छे से बिहेव करती है, तीसरी कास्ट के साथ में अलग थोड़ा अलग सा बिहेव करती है, कम अच्छा बिहेव करती है, वहां पे जो इनइक्वालिटी है वो बता रहे हैं। तो वो एक दूसरे से जेलस भी है। They are jealous of one another. It is an ascending scale of hatred and descending scale of contempt। असेंडिंग स्केल मतलब छोटे से बड़ा होता है असेंडिंग, और कंटेम्प्ट मतलब सेटिस्फैक्शन, छोटे से बड़ा करते जाओ उतना उनमें हेट्रेड बढ़ते जाता है। डिसेंडिंग स्केल ऑफ कंटेम्प्ट एक दूसरे के प्रति जो कंटेंट है, जो पीस है, जो आपसी एकता है, जो शांति है, वो अपने आप डिसेंडिंग बड़े से छोटा, वो जो शुरू में ज्यादा थी अभी वो कम होती हमें नजर आती है। दिस फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम हैज मोस्ट pernicious consequences। It destroys willing and helpful cooperation। Caste and caste and class differ in the fact that in the class system there is no complete isolation and there is in the caste system। देखो कास्ट एंड क्लास डिफर इन द फैक्ट दैट क्लास सिस्टम जो होता है, क्लास सिस्टम देयर इज नो कंप्लीट आइसोलेशन एज देयर इन कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में कंप्लीटली किसी कास्ट को आइसोलेट कर देते हैं बट क्लास सिस्टम में ऐसा नहीं करते हैं। सो दिस इज द सेकंड एविल effect in the caste system accompanied by inequality। This manifests itself in the fact that the stimulus and the response between the two castes is only one-sided। The higher caste acts in one recognized way and the lower caste must respond in established way। मतलब हायर कास्ट अपने हिसाब से नए रूल्स बनाती है, अपने हिसाब से चीजें करती है, और जो लोअर कास्ट है उनके पास इतना पावर नहीं है, तो उनके पास जो एस्टेब्लिश ऑलरेडी सेट ऑफ रूल्स है वो अकॉर्डिंगली उसी डायरेक्शन में हमेशा चलती रहती है। It means when there is no equitable opportunity to receive the stimulus
from and to return the response from the different castes, the result is influence which educates some into masters and educates some others into slaves. मतलब इसी वजह से जो लोअर कास्ट है वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है क्योंकि उनके पास इतना पावर नहीं है कि कुछ और कर पाए, और अपर कास्ट उनके पास पावर है तो वो नई चीजें एस्टेब्लिश कर देते हैं, नए रूल्स बना लेती है अपने लिए और ऐसे आगे बढ़ते रहती है। तो इसी वजह से जो कास्ट का डिफरेंस है उसकी वजह से पीपल के अंदर, सोसाइटी के अंदर पैसों का डिफरेंस भी, हाई ऊंच नीच का, रिच पुअर का भी डिफरेंस बढ़ते जाता है। The experience of each party loses its meaning when the free interchange of varying modes of life experiences is arrested. It results into separation of society into a privileged and a subject class. मतलब इससे हम एक डिफरेंस देखते हैं सोसाइटी में, एक प्रिविलेज क्लास ऑफ सोसाइटी हो गई और एक सब्जेक्ट क्लास ऑफ सोसाइटी हो गई। सच अ सेपरेशन प्रिवेंट सोशल एंडोस्मोसिस। इसी वजह से ये जो सेपरेशन होता है इससे सोशली एक दूसरे से ये दोनों ऊंच ऊपर ऊपर कास्ट और लोअर कास्ट एक दूसरे से मिल नहीं पाते, कभी एक साथ में हो नहीं पाते हैं। देयर इज अ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम। इस कास्ट सिस्टम का तीसरा और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि है which very कर्ज जो डेमोक्रेसी के रूट्स को ही काट देते हैं। इट इज दैट वन कास्ट इज बाउंड टू वन ऑक्यूपेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक डेमोक्रेसी तभी वर्क करती है जब उसमें इकोनॉमी सही से चल रही है। इकोनॉमी तभी सही से चल रही है जब आप लेन देन व्यवहार, पैसों का व्यवहार, ऑक्यूपेशन, बिजनेस सब सही से वहां पे हो रहा है। पर यहाँ पे कास्ट सिस्टम की वजह से, क्लास सिस्टम की वजह से, इनइक्वालिटी की वजह से, रिच एंड पुअर के डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि एक कास्ट एक ही पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट कर लेता है। सोसाइटी नो डाउट, और वही वो कास्ट वाले दूसरे कास्ट को उस पर्टिकुलर बिजनेस जोन में एंटर भी नहीं करने देते हैं। Society is no doubt stably organized when each individual is doing that for which he has aptitude by nature in such a way as to be useful to others. And that is, it is the business of society to discover these aptitudes and progressively to train people for social use. But there is in there is in man an indefinite plurality of capacities and activities which may characterize an individual. A society to be democratic should open a way to use all the capacities of individual. Stratification is stunning of the growth of the individual, and deliberate stunning is a deliberate denial of democracy. वही वो बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर बिजनेस को, ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट कर लेता है और उसे उसी नाम से बुलाया जाता है। ये ऑक्यूपेशन के नाम से उस कास्ट को नाम भी पड़ जाते हैं कई बार, जो गलत होता है। दूसरे लोगों को वहां पे वो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, पर्टिकुलर बिजनेस जोन में एंटर ही नहीं करने दिया जाता है। हाउ टू पुट एन एंड टू दिस कास्ट सिस्टम। अब इस कास्ट सिस्टम का एंड कैसे किया जाए? द फर्स्ट ऑब्स्टेकल लाइज इन द सिस्टम ऑफ ग्रेडेड इनइक्वालिटी विच इज द सोल ऑफ कास्ट सिस्टम। ग्रेडेड इनइक्वालिटी, जो ग्रेड के साथ में इनइक्वालिटी कि हाँ तुम्हारे साथ इतना पैसा है, तुमसे ऐसे बर्ताव किया जाएगा, तुम इस कास्ट के हो तो तुम्हारे साथ ऐसे बर्ताव किया जाएगा। तुम उसके बाद में नीचे, अगर तुम्हारे साथ इतना पैसा है तो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव होगा, तुम इस कास्ट के हो तो ऐसा बर्ताव होगा। उससे नीचे तुम्हारे पास इतना पैसा है, ये कास्ट के हो तो ऐसा बर्ताव। जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी जो है उसको, वो सोल है इस चीज का, इसे हमें खत्म करना है। वेयर पीपल आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास, हायर एंड लोअर, इट इज इजियर फॉर लोअर टू कंबाइन टू फाइट द हायर। लोअर और हायर में डिवाइडेड है, इट इज इजियर फॉर लोअर को कंबाइन करके टू फाइट द हायर पॉसिबल है। फॉर देयर इज नो सिंगल लोअर क्लास, द क्लास कंसिस्ट ऑफ लोअर एंड लोअरर। इसमें भी अभी जैसे इनइक्वालिटी ऐसे हो गई कि लोअर में भी हमने लोअर और लोअरर बना के रख दी है। द लोअर कैन नॉट कंबाइन विद द लोअरर। अभी जो लोअर क्लास वाले हैं ना, वो लोअरर कास्ट वालों से भी नहीं कंबाइन हो पाते। वो लोअर क्लास भले खुद लोअर कास्ट के हैं, पर वो खुद लोअर कास्ट भी लोअरर कास्ट के साथ में मिक्स नहीं हो पाते, जेलअप नहीं हो पाते। For the lower man is afraid that if he succeeds in raising the lowerer, he may well himself lose the high position given to him at his caste. मतलब लोअर कास्ट वाला खुद डरता है अगर वो लोअरर की हेल्प कर देंगे तो लोअरर अगर प्रोग्रेस कर जाएगा तो वो खुद लोअरर से लोअर में आ जाएगा, और उसको जो रिस्पेक्ट उसका लोअर कास्ट से मिल रहा है वो भी उसे मिलना बंद हो जाएगा। ये सोच है अभी हम लोगों की। The second obstacle is that यहाँ पे दूसरा obstacle ऐसा है, the Indian society is disabled by unity in action and by not being able to know what is its common good. Plato has said that the organization of society depends ultimately upon the knowledge of the existence of the end of existence. If we do not know its end, we do not know its good.
We shall be at the mercy of accident and caprice. Unless we know the good or the end, we have no criterion for rationally deciding what possibilities are which we should promote. Can the Indian society in its bound state ever solve the problem? ऐसी सोसाइटी जो आज बंधी हुई है, ऐसे ऐसे कास्ट सिस्टम के अंदर बंधी हुई है, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व भी कर पाएंगी? We come upon the most unsuperable obstacle that such knowledge is not possible save in just a harmonious social order. Can there be a harmonious social order under caste system? क्या ऐसा harmonious social या harmony सबके लिए सेम रूल, सबके लिए सेम ऐसा व्यवहार, क्या ये हमारे सोशल ऑर्डर कास्ट सिस्टम में पॉसिबल है? Everywhere the mind of Indians is distracted yeah, and misled by the false valuation and false perspectives. A disorganized and the factional society sets up a number of different models and standards. Under such condition, it is possible for individuals, Indians, to reach consistency of mind on the question of caste. वही सारी बातें हैं कि कास्ट बेसिस पे क्या ये चीज़ें पॉसिबल है, क्या ये चीज़ें पॉसिबल है। कहीं ना कहीं उनके साथ में जो ब्रेन वॉश भी होता है कास्ट के द्वारा, कास्ट का क्या ये सारी चीज़ें सही है या पॉसिबल है, वही अलग अलग तरीके से राइटर जी हमें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैन एजुकेशन, यहाँ पे अभी एजुकेशन की बात है, कैन एजुकेशन डिस्ट्रॉय द कास्ट? द आंसर इज यस, हाँ भी और ना भी। If education is given as it is today, education have no effect on caste. It will remain as it is. The glaring example of it is the Brahmin caste. 10% of its educated, nay majority of it is highly educated. या तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं. Yet no one Brahmin has shown himself to be against caste. In fact, an educated person belonging to higher caste is more interested after his education to retain the caste system than when he was not educated. मतलब उसे जब एजुकेशन मिलता है तो उल्टा भी हो जाता है कई बार कि वो कास्ट सिस्टम मेंटेन रखना चाहता है। पहले उसके दिमाग में ये सब नहीं था कि कास्ट का ऊपर नीचे, पर जब एजुकेशन मिलता है, एजुकेशन मिलने के बाद जब उसे मान सम्मान पैसा मिलता है, तो ऑटोमेटिकली वो कास्ट सिस्टम मेंटेन जैसा है कि हाँ हम ऊपर तुम नीचे, वो एक एजुकेटेड इंसान भी ऐसी सोच बेयर करना शुरू कर देता है। For education gives him an additional interest in retention of the caste system, namely by opening additional opportunity of getting bigger job. ये सिर्फ bigger job मिलेगा तो जो भेदभाव है वो भेदभाव रहने दो। अगर वो लोग भी अपर कास्ट में आ गए, अगर वो लोग भी डेवलप कर गए तो जॉब्स कम हो जाएंगी। यहाँ पे लोग कास्ट सिस्टम एजुकेट होने के बाद में मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। इन्हें पढ़े लिखे गवार ही बोल सकते हो, और क्या बोलेंगे। फॉर दिस पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन इज नॉट हेल्पफुल एज मीन्स टू डिसॉल्व कास्ट। एजुकेशन एक मदद कर सकता है कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए, बट पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं कर सकता है। So far is the negative side of education, और ये एक negative side भी है। But education may be solvent if it is applied to the lower strata of the Indian society. पर यही education अगर lower caste, lower strata of Indian society को दिया जाए तो it can be useful. It would raise their spirit of rebellion. In this present state of ignorance, they are the supporters of the caste systems. Once their eyes are opened, they will be ready to fight the caste system. अभी उनकी आंखें बंद है, बट एडुकेट करके उन्हें बता दिया जाए कि ऐसा ऐसा कास्ट सिस्टम है, डिफरेंशिएट हो रहा है, तो उनकी आंखें खोलने के बाद में they could rebel and they could work hard to be to remove the caste system from the society. यानी लोअर कास्ट को पढ़ाए तो कुछ फायदा है, और अपर कास्ट को पढ़ाए तो वो लोग डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन रखना ज्यादा प्रेफर करेंगे, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। The fault of the present policy is that though the education is being given on a larger scale, it is not given to the lower strata of Indian society. If you give education to that strata of Indian society which has vested interest in maintaining the caste system for the advantages it gives them, then the caste system will be strengthened. On the other hand, if you give education to the lower strata of Indian society which is interested in blowing up the caste system will be blown up. At the moment, the indiscriminate help given to education by the government and American Foundation is going to strengthen the caste system. To make rich richer and the poor poorer is not the way to abolish poverty. The same is true for using education as a means to end the caste system. To give education to those who want to keep up the caste system is not to improve the prospect of democracy in India, but to put our democracy in India in greater jeopardy.
मतलब वो जो ऊपर बताया कि लोअर स्ट्राटा को अगर एजुकेट करेंगे तो वो ऑलरेडी तैयार थे कास्ट सिस्टम हटाने के लिए, तो ऑफ कोर्स दे विल वर्क हार्ड टू रिमूव द कास्ट डिफरेंशिएशन कास्ट सिस्टम। और वो वही बता रहे, पर अभी का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो गवर्नमेंट और अमेरिकन फाउंडेशन द्वारा दिया गया है, वो अभी कास्ट सिस्टम को बढ़ा के ही मानेगा, जिसकी वजह से रिच रिचर होते जाएंगे और पुअर पुअरर होते जाएंगे। और ऐसे हम कभी भी गरीबी से ऊपर नहीं आ पाएंगे और पॉवर्टी को हम कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। तो और इसी तरीके से चलता रहा तो हम हमारी डेमोक्रेसी जेपर्डी में खतरे में डाल रहे हैं। तो ये था यहाँ पे वो चैप्टर जहाँ पे दिस आर द प्रोस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, जो हमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दिया है। उनकी स्पीच के दौरान उन्होंने हमें बताई है कि ऐसा कुछ किया जाए, ऐसी तरीके से हमें सोसाइटी के अंदर एक सिस्टम क्रिएट करना है कि जहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो कास्ट बेसिस पे, तब जाके हम सही मायने में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे ऐसा बोल पाएंगे। तो दैट वाज योर चैप्टर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया बाय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी। आई होप you all have understood it. I hope you all have liked it. That was the end of it. Thank you so much.